So let's start simultaneous linear equation solving by algebraic method. First we will see the first method, that is known as substitution method. Substitution जैसा कि नाम से ही लगता है, सब्स्टिट्यूट करना, उसकी जगह पे किसी और को लाना, किसी की जगह पे किसी और को लाना. So we will take one example and solve it by substitution method. Take for example 2x plus y is equal to 7. 2x plus y is equal to 7, and the next one is 4x minus 3y plus 1. 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. First of all, just write this one as 4x minus 3y is equal to minus 1. Now we have to use the substitution method. Take this one, y is equal to 7 minus 2x. Take this as equation 1 and this as equation 2. Putting y is equal to 7 minus 2x in equation 2. 4x minus 3 into, we will put the value of y. 3 into y we will write, instead of y we will write 7 minus 2x. 7 minus 2x is equal to minus 1. Okay, now solve it. 4x minus 21 plus 6x is equal to minus 1, or 10x is equal to 21 minus 1, that is 20, or x is equal to 20 by 10, that is 2. So we have got the value of x as 2. Now put this one is in equation 1. Y is equal to 7 minus 2x, or y is equal to 7 minus 2 into 2, or y is equal to 7 minus 4, that is y is equal to 3. So we have got the answer as y is equal to 3 and x is equal to 2. Any confusion in of you? कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, स्पीक अप. बोलोगे नहीं तो मैं समझूंगा नहीं. आवाज नहीं आ रही है सर. Dear, there must be network problem on your side as I am using Wi-Fi from today itself. So please थोड़ा network check करो अपनी तरफ. And yes Madhu, what were you telling? फिर से रिपीट कर देना. अब बाबू जिसको भी आप अपना जो जहाँ पे नेटवर्क इशू आ रहा है, प्लीज़ अपने पोजीशन को थोड़ा चेंज करके देखो, क्योंकि मैंने जस्ट फ्रॉम टुडे आई एम यूजिंग वाईफाई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड. आप लोग देख लो अपनी तरफ, थोड़ा प्रॉब्लम है तो, या आप लोग भी देख लो, वाईफाई लगवा लो, डेटा में बहुत दिक्कत होता है. खैर, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड लास्ट डे देखे थे. आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे. तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू सॉल्व इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो वी हैव गॉट टू इक्वेशन, 2x plus y is equal to 7, and the second one is 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. This one, which we have got 4x minus 3y is equal to minus 1. So since we need to proceed through substitution method, then we will take this one as y is equal to 7 minus 2x and keep it as equation 1,
and this one as equation 2. Now putting the value of y, that is y is equal to 7 minus 2x in equation 2. Equation 2 में से पुट करेंगे ये वाला इक्वेशन में. Now this one is 4x minus 3. अब y की जगह पे y ना लिख के ये लिखेंगे 7 minus 2x. 4x minus 3 into 7 minus 2x is equal to minus 1, जैसा कि यहाँ इक्वेशन में मेंशन था. Okay. Now 4x 3 into 7 minus 21 minus minus plus 3 into 2 6x is equal to minus 1. Now proceed further. 4x plus 6x, it is 10x. Now 21 को इस साइड ले जाएंगे, it will become positive. 21 minus 1 will be 20. x is equal to 20 by 10. That means ये आपको क्रॉस आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, x is equal to 2. Now we will put the value of x in equation 1. y is equal to 7 minus 2x. y is equal to 7 minus 2 into 2. y is equal to 7 minus 4, that is 3. So we have got the value of x is equal to 2 and y is equal to 3. Is that clear? Okay. Any of you any problem? No. Yes sir. Clear है. चलिए. Okay, thank you. और बाबू नेटवर्क का इशू है, एक बच्ची ने कहा था आवाज आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज चेक योर नेटवर्क. ठीक है. चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में और कुछ बता दें या फिर अब एलिमिनेशन आपको समझा दें. दिस वन इज क्लियर, या एक और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे देख लें हम लोग. यस जल्दी बोलो, एक और बता दें. चलो जल्दी बोला करो. देयर इज नो नीड टू पैनिक, डरने की कोई बात नहीं, जो आपको समझ में आ रहा है जल्दी बोलो. और मैं यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब अगेन. तो आपको जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो आपको इसको यूट्यूब पे फिर से फर्दर अगेन देख सकते हो. हाँ, बट ये मत ऑप्शन निकाल लेना कि ऐसा करो सर के क्लासेस छोड़ देते हैं सीधे यूट्यूब पे चले जाते हैं. दैट वोंट बी द गुड डिसीजन. यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन जो आप पूछोगे मैं बताऊंगा, वहाँ पर तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा ना, तो ऑफलाइन टाइप हो जाएगा, ऑनलाइन कम ऑफलाइन. चलो जी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एज इट इज रिमांडेड फ्रॉम यू पीपल. तो सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इट्स अ बिट पहले वाले से थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन. अच्छा इसलिए है कि ये फ्रैक्शन में है. 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2. Now the second one, x/3 plus y/2 is equal to 13/6. So we have got these two equations. Now देखो सबसे पहले जो फ्रैक्शन में रहे ना, तो फ्रैक्शन को हटा दिया करो, क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को. आप लोगों को भी लगता हो फ्रैक्शन को देख के लगता होगा डर, अरे ये क्या हो गया, तो बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन है. तो सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या करो, फ्रैक्शन को आप हटा दो. चलो जी. तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे. 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6. 2 3 is 6, 3 3 is 9, minus 3 2 is 6, 5 2 is 10 is equal to -10. It will ultimately become 9x minus 10y is equal to -12. 6 को शिफ्ट कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इधर कुछ भी नहीं. चलो जी सेम हेयर वी विल डू. 3 2 का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, 3 2 is 6, 2x, 2 3 is 6, 3y is equal to 13/6. Now again 2x plus 3y, 13/6 into 6 cancel हो जाएगा, it will become only 13. So the equation is ultimately 2x plus 3y is equal to 13. अब देखो ये अब सिंपल सा इक्वेशन लग रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y by 2. Take this one as equation 1 and this equation 2. Putting x is equal to 13 minus 3y by 2 in equation 1. 9 x यहाँ पे वो वैल्यू पुट कीजिए 13 माइनस 3y by 2 minus 10y is equal to minus 12. So it will become 117. 39 is 117. 27y by 2 minus 10y is equal to minus 12. ओके, अब क्या करो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 117 माइनस 27y माइनस 20y माइनस 24. चलो जी, सॉल्व करना शुरू करो। 24 को का साइड चेंज करते हैं और 20y का भी साइड चेंज करते हैं, तो ये दोनों उस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 47y, और ये इस तरफ आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बिकम 37 for 41 141. Okay, this come to this very side, so it will become positive 24 and 117. So now take this one, y is equal to 141 by 47. 3 times it will be divisible. So y is equal to 3. Now put the value of y here. X is equal to 13 minus 3y. 3 into 3 by 2. 13 minus 9 by 2 or 4 by 2, that is ultimately 2. So x is equal to 2 and y is equal to 3 will be the answer, and it is so. Is it clear? सबको क्लियर है? समझ में आया सबको? ओके, चलिए जी, अब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है आप लोगों को। एक बार आप लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो। बहुत सारे बच्चों को लगता नहीं सर ने जो बताया उसको नोट डाउन कर लें। सो योर विश, नोट डाउन करो। आई एम कमिंग जस्ट।
हो गया भाई? कॉपी मार लिया आप लोगों ने? चलो आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। अब इरेज कर दूं? ओके। टेस्ट में किन किन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था या सबमिशन नहीं हुआ था? विराट, तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ था? टेस्ट नहीं दिया था तुमने? क्यों देना चाहिए था टेस्ट? इस वीक में मैं सैटरडे को कोशिश करूंगा कि मैथ्स फिजिक्स दोनों का टेस्ट लूंगा। टेस्ट में बाबू असेसमेंट कैसे होगा? टेस्ट से ही ना पता चलेगा। एक्सरसाइज जो आप लोग बनाते थे एग्जाम्पल दे के बना लोगे, क्वेश्चन आंसर जो होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने आप को असेसमेंट पूरी तरह टेस्ट में नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आए ना वेयर यू लाई, कितने पानी में हो तुम। तो टेस्ट में अपियर होना चाहिए। ओके, आयुष वॉज देयर, जैद वॉज देयर, कशिश वॉज ऑल्सो नॉट देयर। मोनाली ने तो हाईएस्ट स्कोर किया था आयुष के साथ। मधु वॉज ऑल्सो देयर। कशिश, you were also not there in the test. The second one we are looking to is elimination method. I found this one a better one. ये मुझे थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है and whenever I solve any linear equation I go by this very method. Elimination method. Elimination क्या, काट कूट कर देना बस, और तो कुछ करना नहीं। Anyway, let's start elimination method. कैसे इसमें हम लोग करते हैं? जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, we will take this one example. 10x plus 3y, 10x plus 3y is equal to 75. The next one is 6x minus 5y is equal to 11. Tan x plus 3y is equal to 75 and 6x minus 5y is equal to 11. So this is the question. We need to solve this one by elimination method. Let's see what we can do. चलो जी, इसमें करना फंडा क्या होता है, इसमें किसी एक को आइदर x या y को आपको सेम लाना है। अब देखिए यहाँ 10x है, यहाँ 6x है, हो तो सकता है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से तो हो जाएगा, पर थोड़ा लंबा हो रहा है। चलो 3 और 5 को ट्राई करते हैं। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर 3 से, दोनों 15 हो जाएगा, डिफरेंट साइन है, ऐड करने पे कट जाएगा। चलो कर लेते हैं इसे। इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को क्या करते हैं आपको 3 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 50x 15y 375।
5 5 is 25, 2 carry, 7 5 35, 2 7 375. Okay. Now this one, 18x 15y is equal to 33. Now take this one here, both of them. 50x plus 15y is equal to 375. The next one is 18x minus 15y is equal to 33. कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 68x 408. x इज इक्वल टू कितना होगा, 68 से कितनी बार जाएगा आपको, से 408 by 68. I think it will be divisible by 6 times. 8 6 48 होता है ना, तो 408 by 68. 8 6 48, 6 36, 4 40. x is equal to 6 आ गया. Now put the value of x is equal to 6 anywhere in the equation. इसी में रखते हैं, थोड़ा छोटा सा इक्वेशन है. Putting x is equal to 6 in equation 2. 18 into 6 minus 15y is equal to 33. 108 हो जाएगा ये. 108 minus 15y is equal to 33 और 15y is equal to 108 minus 33. कितना हो जाएगा 108 minus 33? 30 जाएगा तो 78 75. Yes, 75. y is equal to 75 by 15. So we have got y as 5 and x as 6. Is that clear? Clear है सबको? Okay जी, fine. So this is the, हाँ जी, this is the elimination method. समझ में आया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्यों भाई? एक और एडजस्टमेंट करना है. लेट मी बाय वन कॉम्बो स्पीकर कम हेडफोन लेने दो. अब क्या कर सकते हैं? आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है. एक आध दिन और वेट कर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा. तो क्वेश्चन तो समझ में आया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ओके फाइन. सर today's present is 10. गुड वन. मिश्रा जी आ गए आप? चलिए इसमें एक और, ओके चलो इसमें कोई और एक और क्वेश्चन बता दें, या दिस वन इज क्लियर, दिस मेथड इज क्लियर? एक और बता दूं ना? ओके बताता हूँ. ओके
एंड प्लीज इस सैटरडे के टेस्ट में सब लोग प्रेजेंट रहेंगे, जितने लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये टेस्ट नहीं दोगे, नहीं समझ में आएगा सर से क्या पढ़ रहे हैं सर और क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम है तुम्हें। सैटरडे के सैटरडे टेस्ट होता है, सैटरडे सैटरडे। क्या बोल रहे थे तुम लोग? अदिति कुछ बोल रही थी क्या? यस अदिति कुछ बोल रही थी। कौन बोला नोट्स के बारे में? देखो नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने जो वीडियो बनाया उसको पढ़िए, देखिए, समझिए और आप खुद से नोट्स बना लीजिए। दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ। नोट्स देने का मतलब फिर वही काम हुआ कि आप अभी समझे नहीं है, फिर आपको नोट्स पढ़ना है। तो जो चीज़ आप पढ़े उसी का रिपीटेशन कीजिए ना, दैट विल मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई? चलो इसमें एक डिफरेंट एग्जाम्पल है, वो हम देखते हैं, बनाते हैं। ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। The question is that solve for x and y through elimination method. And what's the question? 4 by x plus 3y, 4 by x plus 3y is equal to 8. And the next one is 6 by x minus 4y is equal to minus 5. So देखिए इसमें what's the issue with this very question कि इसमें एक fraction में है, one is there 4 by x and the next one is 6 by x and the another one is y and y only. So we can do one thing here, taking 1 by x as u, and now we will write both the equation accordingly. चेंज कर देंगे उसी तरह, 4u plus 3y is equal to 8 और दूसरा हो जाएगा 6u minus 4y is equal to minus 5. अब एलिमिनेशन वाला प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो जी, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसा करते हैं 4 और 6 को 3 और y को ही सेम करते हैं। y को सेम करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16u 12y is equal to 32. First equation, take this one as 6 3 is 18u minus 12y minus 15. Take this as second equation. Solving these two, 16u plus 12y is equal to 32. 18u minus 15. Both will be cancelled. 16 and 18, 34.
17. So u is equal to 17 by 34, 1 by 2, and we have taken u as x. So we may write this one as 1 by x is equal to 1 by 2, as 1 by x is equal to u 1 by 2, or x is equal to 2. Now we have got x as 2. Now put this value in this equation. 4 by x plus 3 by y is equal to 8, or 4 by x means 4 by 2 plus 3y is equal to 8. This will become 2, or 3y is equal to 8 minus 2, or y is equal to 6 by 3, that is 2. So y is equal to 2 and x is also equal to 2. Any problem, any of you? कोई परेशानी आप लोगों को समझ में आई? ओके, चलिए जी. तो अब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बोथ आर क्लियर टू यू. अब इस पे आप लोग क्वेश्चन बनाइए और फिर मेरे पास आइए. इसे जिसे नोट डाउन करना है, नोट डाउन प्लीज कर सकते हैं आप. नोट डाउन कीजिए आप लोग. ओके, कंप्लीट कर लिए तुम लोग? चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट. आज रूटीन में क्या है? सबने नोट कर लिया ना? किसी का छूटा हुआ नहीं ना है? वैसे आप लोग यूट्यूब वीडियोस में देख लोगे. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वन. सर बिना बाई एक्स इज इक्वल टू यू, ये भी तो बन सकता है. हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. बिल्कुल बन सकता है, बट दिस इज द इजियर वे. ठीक है, ओके सर, ठीक. ओके सर, बन सकता है बिना 1 बाई एक्स को यू लिए भी बन सकता है, बट उस केस में थोड़ा हमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा. तो ज़्यादा व्हेन यू हैव गॉट द ऑप्शंस, जब एलिमिनेशन ही है तो एलिमिनेशन में एलिमिनेशन वाला ही दिमाग लगाते हैं. वैसे इसमें फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किया, फिर एलिमिनेशन किया. सब्स्टिट्यूशन कैसे किया? 1 बाई एक्स के बदले में सब्स्टिट्यूट करके यू लाया. ठीक है, उसके बाद उसको फिर एलिमिनेट किया इक्वल करके 12y और 12y. इज इट क्लियर? ओके सर, मैंने बनाया तो आंसर सेम आया. ओके फाइन. दैट्स व्हाट द टीचर्स वांट. स्टूडेंट में होना चाहिए ये बातें कि आप लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, बट उसके ट्राई करने के लिए आपको पहले बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए. तो अब हम लोग देखेंगे सोशल साइंस. आई एम थिंकिंग वन थिंग कि हम लोग क्या करते हैं ना, पर डे एक सब्जेक्ट को ही लेके चलते हैं. बट आज तो मैं करूँगा कि मेरा वीडियोस बहुत गड़बड़ हो जा रहा है. इट्स बिकम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट. है ना, यूट्यूब वीडियोस गड़बड़ा जा रहा है.
So the board is clear visible to you? विजिबल है? ब्लड आ रहा है, मुझे भी ब्लड लग रहा है, ठीक हो जाएगा। थोड़ा पोजीशन चेंज होता है ना, इनकी जो है ना अटैचमेंट वालों की कैमरा क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है। या एक और काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं इसका, क्लासेस का। सोशल साइंस का अलग ग्रुप, फिजिक्स का अलग ग्रुप, मैथ्स का अलग ग्रुप। उस केस में क्या होगा, ग्रुप अलग बनाने पे हमें वी कैन डू द सेम डील डिफरेंट चैप्टर्स ऑन अ सिंगल डे। ग्रुप ही चेंज करेंगे, फिर दूसरे ग्रुप में जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा किया जा सकता है। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। तो सोशल साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा सर, लाइट चैप्टर में जो भी पढ़ा बताए थे किसी ने नोट किया है? अरे यू हैव गॉट द, क्या मैं बोलूं, तुम्हें यूट्यूब है ना बाबू, वहां पर जाओ, जो मैं बताऊंगा तो बताऊंगा ना। यू मे राइट इट डाउन देयर, आप वहां पर तो लिख सकती है ना। अब वो आपका प्योर आपका अपना होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। अबे कम बात, ये ब्लर क्यों आ रहा है? चलो जी, नाउ इज इट क्लियर? ओके फाइन। चलो तो हम लोग को करना क्या है, सोशल साइंस में क्या कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? कोई बंधु बताने की तकलीफ करेंगे, कष्ट करेंगे? याद नहीं है? टेस्ट इतना अच्छा किया तुम लोग की सब भूल गए? अरे जल्दी बोलो। मधु, जैद, तुम लोग तो रेगुलर क्लास कर रहे हो। आयुष, आनंद, हमाद, मोनाली भी रेगुलर है। बालकन तो कंप्लीट, तो ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया इसका मतलब। हाँ तो ये चैप्टर कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट है। तुम लोग को सोशल साइंस के टेस्ट किसका लिया है? इसी का लिया है ना? एक दिन सब्जेक्टिव टेस्ट भी लूंगा मैं। सब्जेक्टिव टेस्ट देखते हैं कैसे कैसे ले सकते हैं, उसी के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें भी टाइम कम देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को चीटिंग का मौका मिल जाएगा। तो ये तो कंप्लीट हो गया। क्या करूँ नेक्स्ट? स्टार्ट इकोनॉमिक्स कर दूँ या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करूँ, क्या करूँ? पावर शेयरिंग पढ़ा है? हाँ जी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ओके। पावर शेयरिंग पढ़ा है? पावर शेयरिंग नहीं पढ़ा है ना, कभी तो कुछ पढ़ा है नहीं। पढ़ा? अच्छा स्कूल में पढ़ा है। चलिए यहाँ पर जो नए नए लोग सब हैं, तो लेट्स स्टार्ट पावर शेयरिंग।
पावर शेयरिंग क्या होता है? मैं एग्जैक्टली आई स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली थिंग्स। जैसे घर में होता है, ठीक है, घर में किसी की शादी हुई, आप लोग के भैया भाभी कुछ ऐसे होंगे तो, या अगर किसी की बहन की शादी होती है, वो अपने घर पे जाती है, तो सब कुछ पहले अपने घर का सोचते हैं। आपके घर में आपकी भाभी आई, ठीक है, या अगर चाचा की शादी हुई, चाची आई, तो अब क्या होता है, अब मम्मी के साथ या फिर आपके आपकी मम्मी अगर भाभी आई तब भी, या फिर चाची आई तब भी, तो वहाँ पर पावर शेयरिंग होगा। अब क्या होगा, अब यूजुअल थिंग नहीं रहेगी, उसमें क्या होगा, आपको जो लोग एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके साथ अब उन लोगों को भी पावर शेयर करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयर होगी प्लस पावर भी शेयर होगी। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, जहाँ पर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो और पावर शेयर नहीं हो। तो दिस इज द वे हाउ पावर शेयरिंग स्टार्ट। ठीक है, वहां पर क्या होता है, पावर शेयरिंग होता है। तो ये तो भाई घर की बात हुई। कंट्रीज में भी ऐसे ही होता है। कंट्रीज में आपको डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वेदर रिलीजियस ग्रुप्स हो या इथनिक ग्रुप हो, या फिर आपको क्या कहते हैं वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप हो। तो तीन, उसमें हम तीनों चीज में देख सकते हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप कह लो, इथनिक ग्रुप कह लो, या आपको थर्ड वन रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, इन सभी में पावर शेयरिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा देन क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। If there is no power sharing, then it would lead to conflict, resistance। सोसाइटी में आपको रेजिस्टेंस होगा, सोसाइटी में आपको कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, सोशल लेवल पे लोग मार काट करेंगे। तो पावर शेयरिंग लीड्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग से क्या होता है, गवर्नमेंट स्मूथली चलती है। ठीक है, सो पावर शेयरिंग का उसी तरह से आपको इसमें आगे जैसे चलोगे तो उसका दो रीजन बताया जाएगा, एक मोरल रीजन और एक होता है, क्या होता है एक और रीजन, प्रूडेंशियल रीजन। दो रीजन आपको बताओ। मोरल रीजन क्या है, मोरल रीजन चूंकि आपके देश में वैसे लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, इसलिए फर्ज बनता है आप अपने पावर को शेयर करें, उनको भी पावर दें। ठीक है, तो ये मोरल रीजन हुआ। प्रूडेंशियल रीजन ये हुआ कि अगर पावर शेयर आप नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपको वो कन्फ्लिक्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा होगा। तो उससे बेटर है कि आप उनको उनके साथ पावर शेयर करो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आवाज जा रही है आप लोगों को? ओके फाइन। बोर्ड ब्लर दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। तो बेल्जियम में यूरोपियन
जो कि यूरोपियन कंट्री है, करोड़ पॉपुलेशन है, 59% लोग जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो दे आर डच स्पीकिंग। तो 40% जो लोग हैं वो आपको वैलोनिया रीजन में रहते हैं। 40% lives in Wallonia region, and what they speak French language. ये बोलते हैं फ्रेंच में। 1% पॉपुलेशन भी है आपको 49 और 59 to 40 आपको 99 होगा। 1% पॉपुलेशन जो आपको जर्मन स्पीकिंग है। पूरे कंट्री में जर्मन 1% है और वो जर्मन ही बोलते हैं। और कैपिटल सिटी का अलग सिनेरियो है। ये तो पूरे देश का है, मतलब बेल्जियम में, पूरे बेल्जियम में ये हाल है। 59%, 40 एंड देन 1%। अब अगर हम ब्रुसेल्स का देखेंगे, वहां की कैपिटल का, वहां पर डिफरेंस सिनेरियो है। डिफरेंस सिनेरियो वो है कि 80% जो लोग वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग है। ये कंपोजिशन समझना इसलिए जरूरी है कि आगे का सीन आप समझ पाओ कि क्या करना है एक्चुअली। एंड द 20% आर डच स्पीकिंग। अब यहाँ पर असेसमेंट आप कर सकते हो कि देखो वहां पर जो डच है पूरे देश में वो मेजोरिटी में है। यह है ना, मेजोरिटी में पूरे देश में जो आपको मेजोरिटी में डच वाले हैं, डच स्पीकिंग। और फ्रेंच आपको माइनॉरिटी में। when you look at the ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन में देखोगे तो वहां पर अब वो फ्रेंच क्या है, मेजोरिटी में है, और डच क्या है, माइनॉरिटी में। ओके, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों को, अगर दोनों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दोनों जगह पे चाहिए, इन द होल कंट्री एंड द ब्रुसेल्स कैपिटल एज वेल। ओके, सो नाउ व्हाट दे डू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। देखते हैं कि हम लोग वो लोग कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। यहां तक कोई परेशानी किसी को? किस किस ने लीव किया? 10 लोग से 8 हो गए। एनीवेज, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ये क्या कॉन्सिक्वेंस होता है और किस तरह से लोग अरेंजमेंट करते हैं। आई एम इरेजिंग दिस वन। Wait a while, I'm getting NCERT, वहाँ पर कुछ डेटा ज़्यादा दिया था। इनका एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डच का दोनों आपको बाद में हुआ था, फ्रेंच पहले हुए थे।
Okay, this led to the tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 60s. इन बातों को लेके आपको 1950s से लेके 60s तक इन लोगों में टेंशन रहा दोनों में, कि भाई वो कह रहे थे कि आई एम इन द मेजोरिटी व्हाई आई सफर, और वो कहता था कि हम पूरे देश में मेजोरिटी में, हम क्यों सफर करें. So the tension between the two communities was more acute in Brussels. और सबसे ज्यादा ब्रुसेल्स में जो सिचुएशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ब्रुसेल्स में क्यों एक्यूट था, कि क्योंकि इट वाज द कैपिटल. अब वहाँ पर जो मेजोरिटी में था पूरे देश में, वो वहाँ पर माइनॉरिटी में था. सो वो दबने को तैयार नहीं था. The Dutch speaking people constituted the majority in the country but a minority in the capital. Okay, ये आपको यहाँ पे तो माइनॉरिटी में था, बट Dutch was in majority in the whole country, पूरे कंट्री में, in the whole country. ओके, सो अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, दोनों बैठे फ्रेंच और डच, और मिल के बैठ के इन लोगों ने समाधान निकालने का, सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया. इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी वहां पर एडवांटेज ले सकता था. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि यार पूरे देश में तो मैं मेजोरिटी में, मेरी बात होनी चाहिए. और ब्रुसेल्स में फ्रेंच जो आपको उसका फायदा उठा सकता था. बट दोनों में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया. उन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग की बात की. क्या किया? पावर शेयरिंग की बात की. तो नाउ वी विल लुक एट द अकोमोडेशन, किस तरह से अकोमोडेट किया. The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. और ये स्टार्ट इन 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने देश को सुधार लिया, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकाला. उन्होंने कानून कायदे में अमेंडमेंट लाया, चेंज किया. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्ट्री शैड बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. So Dutch speaking, I am writing D speaking, and French speaking, both will be equal. किस मिनिस्ट्रीज में? इन मिनिस्ट्रीज दोनों की बराबर बराबर मिनिस्ट्रीज होगी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा. नेक्स्ट क्या किया, many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. So जो पावर था वो इक्वली स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ऐसा नहीं था, सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं था. द पावर वाज डिवाइडेड अमंग स्टेट्स. जो स्टेट था उनके बीच में पावर को डिवाइड किया गया, ताकि सारे लैंग्वेज वालों को बराबर का कंट्रीब्यूशन करने का राइट, बराबर का राइट मिल सके. ब्रुसेल्स में अब क्या हुआ, इट हैज गॉट अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. अब सारी कंट्री, पूरे देश की जहां तक बात थी, वहां पर दोनों को इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज मिलनी थी, सारे बेल्जियम में. और ब्रुसेल्स में भी ऐसा ही किया गया कि ब्रुसेल्स में हालांकि आपको फ्रेंच मेजोरिटी में थे, फिर भी कहा गया both F and D will have equal representation in the government irrespective of minority and majority. Have equal representation in the government. Okay, तो ये किया गया. और इनके अलावा एक और उन्होंने अच्छा काम किया, वो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा उनके पास थर्ड गवर्नमेंट भी थी, दैट वाज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. और किसी भी काम को करने के लिए तीनों की सहमति, तीनों के एग्रीमेंट जरूरी थी. दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live.
कहाँ पे रहते हैं, फ्रेंच की आज़ादी कहाँ पे है, डच की आबादी कहाँ पे है, और जर्मन की आबादी कहाँ पे है, इससे कोई मैटर नहीं। जहाँ पे भी कोई भी डिसीजन लेना होगा तीनों को बुलाया जाएगा, तीनों के साथ बैठ के एग्रीमेंट होगी, देन अल्टीमेटली द डिसीजन विल बी टेकन। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब ये क्या करेगा भाई, कल्चर से रिलेटेड कोई इशू होगा तो उसको देखेगा, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू होगा तो उसको देखेगा, एंड द थर्ड वन इज एजुकेशनल इशू होगा तो उसको देखेगा। कौन? कम्युनिटी गवर्नमेंट। So this was all the case of Belgium, how it accommodated things and did not led to right। वहां पर दंगा फसाद कोई वैसी कोई चीजें नहीं हुई और मैनेज कर लिया, अपने देश को बचा लिया। Is it clear all of you? हाँ जी, क्लियर है? चलो, अब ये पावर शेयरिंग का यहीं पे हम लोग क्या टॉपिक को ड्रॉप विल डिस्कस रिगार्डिंग श्रीलंका। हम लोग श्रीलंका को देखेंगे और इन द कमिंग सैटरडे को मैं टेस्ट लूंगा। आई विल ट्राई टू टेक टेस्ट ऑफ बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। मुमकिन हो पाए क्वेश्चन अगर बन गया तो ठीक है, अदरवाइज किसी एक का तो लूंगा ही लूंगा, एंड द चांसेस आर देयर कि कोशिश करूंगा फिजिक्स का ही लूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा उसमें, सब लोग जो प्रेजेंट हैं। 10 स्टूडेंट्स वर देयर, बट अभी 2 घट गए हैं। मैं जान रहा हूँ कौन कौन घटे, आई एम गेटिंग बैक टू देम, कहाँ गए उन लोग। ओके, टिल देन गुड बाय। कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना आज से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड? नो नो नो, चलो ओके ओके, बाय बाय, फिर हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय। किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। यस आदिति, बाय 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 ऑल ऑफ यू।